M.K. Raghupati, who is called as leader of leaders, he formed the trade union as FCA Employees Union in 1977 and he protested against the main division. In this period, BKNK Sangh is of 5 forms. FCA Employees Union in South Zone, FCA Employees Association in West Zone, FCA BKNK Sangh Chaki Sir Group, BKNK Sangh Upendra Sir Group in all the zones. These all unions, they fought for the employees and have done wage revisions. BKNK Sangh has bought PLA scheme in FCA. BKNK Sangh has bought easy accommodation in FCA. BKNK Sangh has bought HBA scheme in FCA. BKNK Sangh has got social security scheme in FCA and also bought this benevolent fund scheme in FCA. In 1983, when wage revision negotiations are going on, we are in CDA pattern when FCA is formed. But Raghupati Sir, who is called as leader of leaders, he changed from CDA pattern to IDA pattern because he thought that we are in other organizations. So our service rules should be framed by our union. Our wages should be dealt by our union. Our schemes like benevolent fund schemes, watchmen. Otherwise, whatever 7th Pay Commission is giving, if we are in the CDA pattern, whatever 7th Pay Commission is giving, we should accept it without any voice. And whatever the schemes and rules framing by the DOPT, we should accept the same also. But we thought that IDA pattern is good for the employees and it is BKNK Sangh changed from CDA pattern to IDA pattern in 1983. You know, when I am the wage revision committee member, when we are going for the negotiations with the EDP, he clearly said that we gave 25,500 as demand for the watchman. EDP sir said, I will give only 18,000 rupees. I will not increase single rupee extra to the watchman of the FCA employee. But we negotiated for 4 meetings for the watchman so that our foundation should be strong in FCA. And we have not informed the management. I have not degraded my employee. In front of the management like other executive staff union leader who said that I will increase the composite DA. It is up to the employees to stay in Tazar and railway platform. He is taking dignity to you. How can we expect the management will treat the employees in a dignified manner? BKNK Sangh has raised the employees watchman issue in such a way that my watchman is not the watchman. He is not passed 8th class. He has passed graduation, post-graduation, and his skills are my employees in such a high way that so that my employees should get the equal wages to the Mahatma companies. If I am saying Raju is good person or bad person, I should check his mentality, I should check his actions, I should check his behavior so that I will make friendship with him. Mindset of the bureaucrats. When we are going for the negotiations, if we are keeping any high demand, if management makes us to accept the lower demand, these IAS officers, what they will write in the CR, I have saved 600 crores in this wage revision, I have saved 60 crores in this CR, self-appraisal, and they will get good promotions and good postings, and they will be in the good books of the government. और सर ने बहुत ही बारीकी से अपने ये जो अभी भी सर ने चर्चा की थी और उस टाइम ये भी बता दूं कि 2017 की वेज रिविजन का जो प्रपोजल था सर का बहुत ही अहम योगदान था उसे बनाने में। मैं इन्हें बहुत करीबी से जानता हूँ, इनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। आज सर की देन है कि मेरी बेसिक 8100 से बढ़कर 23,300 हुई थी, जो कि लगभग 3 गुना बढ़ी और जो कि पिछले महीने भी होटल फैसिलिटी ग्रुप बीओडी से हुई है। वो एक बार बता दूँ कि मैं एलटीसी या अदर स्टेट में एग्जाम देने जाता हूँ, मेरे पिताजी LIC में है, उनका गेस्ट हाउस बुक करवाना पड़ता है मेरे नाम से और बहुत ही मुझे शर्म महसूस होती थी कि मैं भी एक PSU सेक्टर में ज्वाइन किया जो कि मुझे दूसरों के सहारा लेना पड़ता है, या तो रेलवे स्टेशन पे या तो किसी दोस्त के यहाँ स्टे करना पड़ रहा था। लेकिन तो मेरी तो ऐसी फैसिलिटी थी, पापा की LIC में है तो मैं उनका गेस्ट हाउस बुक यूज कर लेता था। लेकिन अब मैं परिवार में अपने गर्व से कहूँगा कि आज मुझे भी होटल फैसिलिटी
ठंडे दिमाग से सोचें और इस यूनियन को सपोर्ट करें। आप सर ने जिस तरह से भाषण दिया, एक एक पॉइंट में समझाया, और सिस्टर सीनियर्स के भी आप लोग भाषण सुने होंगे, वो आप लोग इस पर थोड़ा विचार करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा हमको किस यूनियन में जाना है और किसको सपोर्ट करना है। और मैं एक बार फिर इस यूनियन को लाए कि 2027 का जो वेज रिवीजन है वो कुछ मोटामोटी अवसर दिलाए, या हम गर्व से कहें कि भारत सरकार को टैक्स देते हैं। बातों से मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जिम्मेवारी आप लोगों के सामने ज़्यादा है। मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रहना चाहता हूँ। अगर मेरे अगर इलाज हो रहा है, उनको अच्छी सुविधा मिल रही है, तो मुझे इस बात पे गर्व है। और मेरे विरोधियों के पास है, लेकिन आपके पास बताने के लिए एक भी काम नहीं है कि बिहार में मैंने फलाना काम मांगा। तो भैया, अगर शशि जात पात के नाम पर वोट मांग रहा है, तो आप ये शशि के लोगों को शशि के बारे में और जानकारी हो। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को ऐसे मंच के माध्यम से रखना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों ने मुझे विवश कर दिया। मैं वो आदमी हूँ जो अपने व्यक्तिगत जीवन में इस जात पात की रेखा को लांघ कर अपने माता पिता से विरोध करके अपने लिए अंतर जातीय विवाह को स्वीकार किया। आप लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि शशि जात पात कर रहा है, बीकेएन के बंचिंग खा गया, बीकेएन के इंक्रीमेंट खा गया, बीकेएन के लीज एकोमोडेशन खा गया। और सबसे बड़ी भ्रम की बात तो ये है कि एक महासचिव महोदय बिहार में आते हैं और सबसे पहले रीजनल ऑफिस में कहते हैं कि 2250 रुपया सिर्फ होटल में मिला है। सर्कुलर कहाँ है? तो भैया, बिना सर्कुलर के आप कैसे बता दिए कि 2250 मिला है? आप एक बात से सोचिए, आप उसके भी पहले कहते हैं कि हमारा कर्मचारी ताज होटल में रुकेगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश सामा रेड्डी जी उसी के परिवेश में चुनावी अभियान पर बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, जिसके तहत कल उनका खास संग्रह भंडार बक्सर और मंडल कार्यालय बक्सर में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। आज दूसरे दिन उनके द्वारा मंडल कार्यालय हाजीपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अभियान का पर्पस यही है, जो चुनाव के साथ साथ लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाई जाए, जो हमारे द्वारा संघ के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां की गई है और आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेज हैं, उसके लिए कर्मचारियों को किस प्रकार से तैयार रहना है ताकि हम अपनी मांगों को पूरा करने में सफल हो सके। उसी के उनके द्वारा सारी जानकारी दी गई है, जिसमें पूरे बिहार से, हमारे गया से, हमारे मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, समस्तीपुर से सारे लोग आए हुए हैं। तो यही असली मकसद है। कर्मचारी के हितों के लिए रक्षा के बीके ने जो नियम है, कैसे एम्प्लॉय की समस्या को पूरी करती है सर? देखिए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसके तहत अलग अलग मंडल कार्यालयों में हमारी समितियां हैं, जो मंडल कार्य से लेकर मुख्यालय तक कार्य करती है। हम अपनी समस्याओं को उचित माध्यम के द्वारा प्रबंधन के सामने रखते हैं। अगर हमारी कोई भी मांग होती है, अगर प्रबंधक उस मामले को सुलझाने में सफल रहती है, तो हम उसी स्तर तक कार्य करते हैं। अगर क्षेत्रीय स्तर पर मामला नहीं हो पाता है, तो आगे राष्ट्रीय समिति के समझ ये बातें रखी जाती है, ताकि उच्च प्रबंधन के सामने मामले को संज्ञान में लाया जा सके। 17 जून को हो रहे चुनाव के लिए आप सर कर्मचारी की किस तरह से बात को रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हमारा एक ही मकसद है, जो इस अभियान के साथ साथ हम युवाओं को ट्रेड यूनियन के महत्व के बारे में और ट्रेड यूनियन का भारतीय खाद्य निगम में क्या रोल है उसके बारे में पूरी जानकारी दें, ताकि युवा अपने अधिकारों के लिए सजग रहे और सारे लोग शिक्षित हैं। हमारे द्वारा इस चुनावी अभियान के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस मंच को संभाल कर रखें, ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो।
क्या कहिएगा बस सर, क्षेत्रीय आज सचिव जो है बीकेन शमाल किशन रेड्डी बिहार। जी आए हुए हैं बिहार दौरे पर, 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए जी, हैं, आज जी। हाजीपुर में प्रोग्राम हो रहा है। क्या कहिएगा, मुजफ्फरपुर किस तरह से इम्प्लाई को दिक्कत होती है, क्या कहिएगा सर? देखिए ज़मीनी स्तर पे आज जो भी मुज़फ़्फ़रपुर में ज़मीनी स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सर को बताया गया है और सर ने उसका बहुत ही अच्छे से संज्ञान भी लिया है और उन्हें पता चला है कि मुज़फ़्फ़रपुर में क्या दिक्कतें हैं और उनको कैसे समाधान किया जा सकता है। इस पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुज़फ़्फ़रपुर की तरफ से हमारे जो समर रेड्डी सर हैं उनको पूरा सपोर्ट है, बीकेएम के संघ को पूरा सपोर्ट है कि वो वापस से नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ हों और बहुत अच्छे से हमारे कर्मचारियों को एकजुट करके आगे बढ़ें। 17 जून को हो रही चुनाव के लिए क्या लग रहा है, मुजफ्फरपुर जितने भी इम्प्लाई हैं एसबीआई के, क्या लग रहा है सपोर्ट करेंगे? देखिए मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अबव 90% आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि बीकेएन को ही वोट जाएगा। अपना परिचय दें। जी, मैं राहुल रॉय, AG1 मुज़फ़्फ़रपुर NRPA डिपो से हूँ।